बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मुनाजिल दार और आज हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ आवर फोर्थ लेक्चर और इन आवर previous three lectures we discussed our three earlier topics and now we are starting our topic number 4. And before starting this topic, a little bit uh, revision should be here. So assessment, as you all know, that it is an integral part of instructional process. In fact, effectiveness of instruction depends on the quality of assessment. It will not be wrong to say that assessment methods determine the nature of instruction. Assessment is needed because it serves a variety of purposes in an instructional setup. Let us discuss some important things in our today's topic. First of all, there is a content which we are going to discuss. Our heading number 1.4 is group and individual assessment, and our heading number 1.5 is assessment for learning and assessment of learning. And obviously, we will discuss the difference between AFL and AOL. Now, there are some behavioral outcomes. After completing this topic, we will be enabled to learn these three statements. Now, first of all, our heading number 1.4 is individual and group assessment. As we all know that teaching is a process that aims at bringing some desirable changes in the students. These changes may either be in the area of knowledge, skills, or attitudes. The changes in knowledge, attitude, or skills on the basis of experience and exhibited through behavior are known as learning. These changes are relatively permanent because these tend to change in light of new experiences. So it seems that teaching is a process in which some planned experiences are provided deliberately to affect student existing behavior and learning habits. As a product of the process, in the context, we can easily understand the relationship between teaching and learning. But the question is how a student can be assessed. Assessment are different types, but today we will discuss group assessment and its difference from individual assessment. The first step in both teaching and assessment is determining the learning outcomes to be expected from classroom instruction. When we are going to administer a test to a student to know how he or she is learning and what are the impacts of our topics on the student's outcomes, then we will decide that which type of assessment we are going to use. ग्रुप असेसमेंट एज द नेम, जैसे कि आपको पता चल रहा है कि इसका मतलब ये है कि एक ऐसी असेसमेंट जिसमें हम एक ग्रुप को एक ही वक्त एक ही टेस्ट डिज़ाइन करके एक ही वक्त में वो टेस्ट उनके ऊपर अप्लाई कर देंगे. इट्स अ वेरी सिंप्लीफाइड प्रोसेस और एक ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक क्लास को एक इंस्ट्रक्शन देने के बाद, एक इंस्ट्रक्शनल पीरियड पूरा करने के बाद हम उस क्लास की असेसमेंट का एक प्रोसेस जो है वो लेके चलते हैं आगे. नाउ देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप टेस्टिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, I just wrote the headings of these characteristics, and as per the first heading, one time more people. It means at a time a very large number of people can be taken into account, which not only saves time but also it saves money and energy. The role of examiner simplifies. It means no extra attention needs to be paid to the individual members of a group, which helps in simplifying the procedure of examining by the examiner. Better norms are established. The large group and the representative samples always lead to better results, and more importantly, it leads to better established norms. Next is efficiency is more. The highly verbal group can have a higher value of efficiency than that of an individual test. As many people are a part of a group, as it would be more efficient. Less power is required. The group testing does not require much power both in terms of manpower and energy. As the work is done in a group, each group is given one person to administer the following process. The scores are dependent on other things.
In the group testing or in group assessment, the scores totally depend on the reading ability of the individuals. Every individual has to go through the test even if he or she is a member of a group. Difficult to maintain rapport. Of course, it is very difficult to maintain a rapport sometimes because it becomes difficult to control a group, especially when the group is large and orderless. What is rapport now? Rapport is actually a simple chit chat between a teacher and a student that makes a relationship between both of them, and they can actually exchange their ideas with each other in a very friendly way. This is called rapport. Rapport is a style which a teacher continues to make their students feel ease, so they can always talk to their teachers in a friendly mode. The interest is not easily maintained. It is very difficult to create the same level of interest among all the members of the group because everyone has individual differences. If there are 40 students in one class, obviously 40 students have their different interests, 40 students want different modes of instruction, so it is very difficult for a teacher so that he or she can easily maintain interest for each and every student. नेक्स्ट इज इंडिविजुअलाइज्ड असेसमेंट एज जो हमारी पिछली स्लाइड्स थी उसके अंदर हमने सारी ग्रुप असेसमेंट के बारे में डिस्कशन की और उसके अंदर हमने ऑलमोस्ट 8 उसकी करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया और उसमें ये बताया गया कि एक वक्त में एक जो टीचर है वो बहुत सारे लोगों को असेस कर सकता है और जो एग्जामिनर है उसका रोल बहुत सिंपल हो जाता है क्योंकि उसे सिर्फ स्टूडेंट्स को चेक करना होता है, उसमें हर स्टूडेंट के लिए इंडिविजुअल उसे टेंशन देने की ज़रूरत नहीं होती। टीचर जो है वो बेहतर नॉर्म्स जो है वो इस्टेब्लिश कर सकता है और सब लोगों के लिए इक्वल रूल अप्लाई किया जा सकता है और इसके अंदर सारे स्टूडेंट्स को चूँकि एट अ टाइम जो है वो चेक कर लिया जाता है। इसका मतलब है कि इसमें हम कम वक्त में ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग कर सकते हैं और इसके अंदर हमें लेस पावर्स की ज़रूरत होती है। अगर हमने 60 लोगों या 40 लोगों के लिए एक असेसमेंट प्रोसीजर लेके चलना है तो हम एक ही रूम में 40 स्टूडेंट्स को बिठा के एट अ टाइम अगर एक ग्रुप टेस्ट ले लेंगे तो उसको 2 घंटे में हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको इंडिविजुअलाइज्ड करके करेंगे तो ऑब्वियसली हमें हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली 2 घंटे देना पड़ेंगे, तो हर बच्चे से 2 घंटे का अलग अलग टेस्ट लेना दैट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अ सिंगल टीचर। इसी तरह उसके अंदर हमने ये भी डिस्कस किया कि जो स्कोर्स होते हैं उसके वो टोटल डिपेंड करते हैं सिचुएशन के ऊपर, उसकी रीडिंग एबिलिटी के ऊपर और क्लासरूम में उसने जो कुछ सीखा होता है। और हमारा जो ग्रुप डिस्कशन होती है उसमें रैपिड क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि स्टूडेंट टीचर के दरमियान 40-30 स्टूडेंट्स के दरमियान डेली डिस्कशंस नहीं होती। अगर इंडिविजुअल बच्चे को पढ़ाया जाए तो उसमें टीचर उसके पर्सनल्स में इंटरेस्ट लेता है, उसकी फैमिली में इंटरेस्ट लेता है, उसे गाइड करता है, उसे काउंसलिंग देता है। लेकिन 40-50 स्टूडेंट्स की क्लास में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ टीचर कि वो एक एक बच्चे को बुला के उसकी पर्सनल्स को डिस्कस करता फिरे और फिर इसमें इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन इंडिविजुअलाइज्ड असेसमेंट इज़ टोटली ऑपोजिट ऑफ द ग्रुप इंस्ट्रक्शन। इन इंडिविजुअलाइज्ड असेसमेंट एंड सिंगल इंडिविजुअल एक सिंगल एंटिटी का एक वक्त में असेसमेंट की जाती है। Now, what are the major characteristics of individual testing? Number one, more attention is paid. As the test is done on each individual one by one, the examinee is to pay more attention towards that person. Due to proper attention, the results also come out to be great and it is beneficial for both the individual as well as the examinee. जब आप एक एग्जामिनर एक बच्चे को स्पेशल अटेंशन देगा, उससे ज़्यादा गाइड करेगा, उसे प्रॉपर अटेंशन देगा तो ऑब्वियसली उसके रिजल्ट ज़्यादा बेनिफिशियल आएंगे बजाय इसके कि उसको 10 लोगों के साथ बिठा के 1 घंटे में 10 लोगों को पढ़ाया जाए। जहां आपने 1 घंटा एक बच्चे को सर्व करना है तो उसके रिजल्ट ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। The behavior can be observed easily. The examining gets more time to know the individual as the individual is examined individually. More attention could be given to them. It is possible for the examinee to know the behavior of the individual. Next, the third is the examinee
can easily convince and encourage the persons. The examinee, in the case of individual testing, can encourage and convince the individual. He can motivate one individual, one student by this manner कि वो उसे positive, negative किसी भी तरह की जो है वो उसे जो motivation है वो दे सकता है. By this manner, the individual can be encouraged and the right path could be shown to him or her. The efficiency is way better than other methods. As the tests are conducted on an individual level, the efficiency ought to be great because all concentration is given over time on one individual. It is very time consuming. The individual testing is time consuming because this is in it each and every individual has to be taken into account during the test, and one individual can take as much time as needed. जितनी देर में आप पूरे ग्रुप को टेस्ट कर लेते हैं उतनी देर हमें एक एक इंडिविजुअल को देना पड़ती है. Trained and experienced examiner is required. Obviously, for such individual tests, the experienced and trained examiners are required, and at time it is difficult to have the staff which is equally qualified and has the experience which is required for conducting the test. It costs more than other procedures. As a result, as the test is conducted at an individual level, for every individual, stationery is required. If the written test is not conducted, then it might be verbal still for verbal testing. Also, lots of energy goes, especially when done on an individual level. Questioning every individual and knowing the problem of every individual is a big task for the examinee. So it forms one of the disadvantages of individual testing, that it is very time consuming, it needs more energy, it needs more attention for individual student. These are the references for this topic. ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक था जिसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप असेसमेंट का डिफरेंस बताने की कोशिश की गई है, और इसके जो रेफरेंसेस हैं वो ऊपर जो 3 हैं वो इनके डिफरेंट रेफरेंसेस हैं, और नीचे मैंने एक वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर किया है फॉर फर्दर. अगर आपको किसी चीज़ को समझना हो तो आप इस वीडियो क्लिप को देख सकते हैं एकदम. नेक्स्ट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग. दिस इज़ और 1.5 टॉपिक, और ये टॉपिक जो है ये करने के बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. नाउ व्हाट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग. हमारे पास एक्चुअली 2 तरह की असेसमेंट्स होती हैं. एक को हम असेसमेंट जो है वो ऑफ लर्निंग कहते हैं, और एक को हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं. The difference between assessment of learning and assessment for learning is a matter of function and purposes. A matter of function is like assessment of learning is a way to see what the student can do, while assessment for learning is a way to see what the teacher should do in the response. So what is assessment for learning is assessment AFL is approach for teacher to think that what procedure he or she should adopt to get a better outcome from the students. और इसके अंदर जो है वो टीचर ज़्यादा मेहनत से ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने स्टूडेंट से वो परफॉर्मेंस लेने की कोशिश करता है जो उसे लगता है कि वो स्टूडेंट को इस तरह से मोटिवेट कर सकता है, उसे इनकरेज कर सकता है, और जिसके लिए वो स्टूडेंट को ज़्यादा जो है वो अप्रोच करता है, उसे पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह से उसको मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, उसे फीडबैक लेने की कोशिश करता है. Student assessment जो है that is often regarded as being essential for the benefit of teacher and administrator. This attitude overlooks the direct contribution. Assessment can make the students proper, and properly used assessment procedures can contribute directly to improve student learning. We can improve nature of our learning outcomes, providing short-term goals to work toward the student can get better knowledge, और इसके ज़रिए हम जो है वो अच्छा फीडबैक ले सकते हैं. टाइम टू टाइम हम बच्चे को इन्फॉर्मेशन देते हैं, और उस इन्फॉर्मेशन से हम उसकी डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने की कोशिश करते हैं, और हम ये देखते हैं कि वो फ्यूचर के लिए किस तरह की चीज़ों को सीख रहा है, और फर्दर हम उसको क्या क्या सिखा सकते हैं. असेसमेंट हमारे इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर में चूँकि एक अहम रोल प्ले करती है, और जिसकी वजह से टीचर अपनी डिसीजन मेकिंग पावर्स को बेहतर करता है. इट इज़ बियॉन्ड डाउट दैट अ नंबर ऑफ डिसीजंस मेड बाय टीचर रिक्वायर देम टू ऐड देयर informal observations of students with more systematic measures.
और इस पे मिलर जो है वो कहता है कि न्यूमरस डिसीजन मेड बाय टीचर्स रिक्वायर देम टू सप्लीमेंट देयर इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशंस ऑफ स्टूडेंट्स विद मोर सिस्टमैटिक measures of aptitude, achievement and personal developments. ओके, असेसमेंट फॉर लर्निंग में वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके साथ जो है वो हम जो है वो इन चीज़ों को देख सकते हैं. वन वे ऑफ थिंकिंग अबाउट AFL इज़ दैट इट एम्स टू क्लोज द गैप बिटवीन अ लर्नर्स करंट सिचुएशन एंड वेयर दे वांट टू बी इन देयर लर्निंग एंड अचीवमेंट्स. ऑफ कोर्स टीचर नीड्स टू गेट सम डिसीजंस और उनको अपने डिसीजंस की सिलेक्शन के लिए इस चीज़ को देखना होता है कि वो स्टूडेंट को क्या क्या चीज़ें सिखा सकता है, उसको कितना स्किल कर सकता है, वो ऑलरेडी कितना स्किल्ड और फर्दर किस टाइप की स्किल्स की उसके लिए ज़रूरत है. AFL इन्वॉल्व स्टूडेंट्स बिकमिंग मोर एक्टिव. ऑब्वियसली टीचर ट्राई टू कि वो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाए. टीचर स्टूडेंट को अपने साथ पार्टिसिपेट करवाने के लिए डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ देता है, वो उसे ज़्यादा सोचने का मौका देता है और उसको अपने साथ ज़्यादा कन्विंस करके आगे लेकर चलने की कोशिश करता है. Now look at this picture and here I simply try to discuss that where the learner is now. Actually this is the basic phase. ठीक है. अब वेयर द लर्नर इज गोइंग, यहाँ वो कहाँ पे है. वेयर द लर्नर इज नाउ, वो किस सिचुएशन पे मेरे पास आया, वट हिज और हर इज प्रेजेंट सिचुएशन. एंड वेयर द लर्नर इज गोइंग एंड वेयर आई शुड गेट हिम कि वो नेक्स्ट 2 वीक्स में, 3 वीक्स में, 4 वीक्स में उसके पास फर्दर कितनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एंड हाउ टू गेट देयर. और वो कौन सा प्रोसीजर, वेयर द लर्नर इज गोइंग एंड हाउ आई हैव टू टेक हिम टू हाउ टू गेट देयर, कहाँ मुझे उसे लेके जाना है. एंड नेक्स्ट दिस प्रोसीजर इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. इट इज़ लाइक अ रीसाइक्लिंग. एज यू ऑल नो दैट वी लर्न और सिंपल कॉन्सेप्ट्स, और हमारे जो सिंपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को नेक्स्ट क्लासेस में थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया जाता है. इट इज़ अ ग्रेजुअल सिस्टम. जब भी कोई करिकुलम बनाया जाता है या कोई भी लर्निंग मटेरियल स्टूडेंट को दिया जाता है तो ग्रेजुअली दिया जाता है. जैसे लेट्स से हम बहुत अर्ली एजेस में बच्चों को मोहल्ले वकू पाकिस्तान का सिखाना शुरू करते हैं, पाकिस्तान की मैपिंग के बारे में बताते हैं, साउथ ईस्ट वेस्ट के बारे में बताते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे हर क्लास में उसके अंदर हम और चीज़ों को ऐड करना शुरू कर देते हैं कि व्हाट आर द बेसिक रीजंस के हमारे दूसरे ममालिक के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं, वो रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए या कैसे होने चाहिए. वो सब चीज़ें एक कॉन्सेप्ट को 6, 7, 8 साल तक बच्चे को कन्वे किया जाता है और हर साल उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन के साथ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल जो है वो एडअप कर दिया जाता है. उसकी बेसिक रीज़न क्या होती है, क्योंकि स्टूडेंट अपनी लर्निंग, अपनी मेंटल एबिलिटी, अपनी फिजिकल एज के साथ साथ लर्निंग को आगे लेके चलता है. सो टीचर हैज़ टू अडॉप्ट दोज प्रोसीजर्स. इसी वजह से टीचर असेसमेंट फॉर लर्निंग की तरफ जाता है कि वो ये देखना चाहता है कि मुझे ये देखना है कि मैं जो चीज़ स्टूडेंट को लर्न करवाना चाह रहा हूँ क्या स्टूडेंट मेरे प्रोसीजर, मेरे टीचिंग मेथड से उस चीज़ को अटेन करने की कोशिश कर रहा है या नहीं. AFL and the relationship with formative and summative assessment. Traditionally, AFL has been closely associated with formative assessment because ज़्यादा इसका जो चलता है वो relationship formative assessment के साथ होता है. Formative assessment is an ongoing process that is a continuous process. As we all discussed it earlier in our first or second lecture, I told you that formative assessment is an ongoing process. फॉर्मेटिव असेसमेंट एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें स्टूडेंट डेली बेसिस पे अपने स्टूडेंट को असेस करता है, उसे चेक करता है और उसके बाद वो स्टूडेंट को डेली बेसिस पे उसके अंदर वो चेंजेस करने की कोशिश करता है. फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ यूज्ड टू मॉनिटर लर्निंग प्रोग्रेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन एंड टू प्रोवाइड कंटिन्यूस फीडबैक टू बोथ pupil and the teacher concerning learning successes and failures. Feedback is pupils reinforces successful learning and identifies the learning errors that need correction. Feedback to teacher provides information for modifying instruction and prescribing group and individual remedial work. So formative evaluation depends heavily on especially preparing tests for each segment of instruction and are usually mastery tests that directly measure the segment's intended learning outcomes. As teacher go through the classes, teacher try to test different topics so he can understand कि उसका जो
बेसिक पर्पस है, क्या वो अपने पर्पस को अचीव कर रहा है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या उनसे उसको उतनी लर्निंग आउटकम्स मिल रही हैं या नहीं मिल रही। और this differs from summative assessment. Obviously AFL, that is entirely different from summative assessment, but फॉर्मेटिव असेसमेंट का बेसिक पर्पस ये होता है कि स्टूडेंट की समेटिव असेसमेंट को बेहतर किया जा सके। सो दिस इज़ वन ऑन गोइंग प्रोसेस जिसके अंदर टीचर बच्चे की टोटल फॉर्मेशन करता है और उसको सम अप करने की तरफ लेके चलता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, नाउ दिस इज द सेकेंड कॉन्सेप्ट। इन आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होती है। असेसमेंट फॉर लर्निंग इज अ वे टू सी व्हाट द टीचर्स शुड डू इन रिस्पॉन्स टू स्टूडेंट्स लर्निंग। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है इसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज अ वे टू सी व्हाट द स्टूडेंट्स कैन डू वाइल असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसके अंदर हम स्टूडेंट को देखते हैं कि स्टूडेंट क्या करता है। इट्स बेसिक टाइप ऑफ सुमेटिव जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि टीचर ने जो उसे समझाया, जो पढ़ाया, जो उसे सिखाने की कोशिश की, उसने उससे क्या सीखा था, और यहाँ हम उसका वो रिजल्ट लेते हैं, वो फीडबैक लेने की कोशिश करते हैं कि उसको वो चीज़ें कितनी समझ में आई। उसे द प्रीडोमिनेंट काइंड ऑफ असेसमेंट इन स्कूल इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और इसका बेसिक पर्पस जो है वो समेटिव और ऐसी चीज़ें जिसमें हम आपकी लर्निंग आउटकम्स जो है उनको देखना चाह रहे हैं, उनको चेक करना होता है। अब नाउ व्हाट इज द समेटिव असेसमेंट। अब मैं आपको थोड़ा सा समेटिव असेसमेंट का भी जो है यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। Summative assessment typically comes at the end of a course or unit of instruction. It is designed to determine the extent to which the instructional objectives have been achieved and is used primarily for assigning course grades or certifying pupil mastery of the intended learning outcomes. The technique used in summative evaluation are determined by the instructional objective। जिस तरह के हमारे objectives होते हैं उसके मुताबिक हम अपनी summative evaluation जो है उसको plan करते हैं। But they usually include teacher made achievement test, rating or various types of performances like laboratory, like oral reports and evaluation of procedures, like drawings, like research reports, etc. Although the main purpose of summative evaluation is grading or the certification of student achievement, it also provides information for judging the appropriateness of the course objective and the effectiveness of the instruction. So in a program and in a learning process, after completing our process, teacher will check the students learning outcomes। तो उसके लिए जो है वो assessment of learning जो है वो effective होती है। Teacher use the test to assesses the quantity and accuracy of students work। टीचर को वो सब चीज़ें, वो फीडबैक स्टूडेंट से चाहिए होता है और वो अपना फीडबैक लेने के लिए स्टूडेंट को बार बार चेक करने की कोशिश करता है। इस तरह के फीडबैक्स का फ़ायदा क्या होता है, इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं। it basically determines the overall success or failure of a student। It is more comprehensive and more vast। It is used for promotion, obviously from one class to another। आपकी जो promotion की जाती है that would be on behalf of this assessment। और it identifies जो आपकी जितनी भी academic potential है, आपके अंदर किसी चीज़ को सीखने का कितना कैलिबर है, आप किसी चीज़ के लिए कितने रिस्पॉन्सिव हैं, उन चीज़ों को देखने के लिए हम इस किस्म की असेसमेंट करते हैं। इट हेल्प्स इन फ्यूचर डिसीजंस। ऑब्वियसली आपकी पर्सनैलिटी से, आपके मार्क्स से इन चीज़ों को असेस करने की कोशिश की जाती है कि व्हाट आर योर ट्रेड्स, व्हाट आर योर ट्रेंड्स, और उन ट्रेंड्स और उन ट्रेड्स के मुताबिक आपको फ्यूचर के लिए गाइड किया जाता है। टीचर प्रोवाइड्स आपको जो प्रोडिक्शंस आपको देता है और उसके लिए आपको मेंटरिंग देता है कि आप फ्यूचर में कौन सी चीज़ें, कौन सी लाइंस को आगे लेके चल सकते हैं। नाउ फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट, और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं जिनको हम आगे कर सकते हैं। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्वेश्चनिंग की जा सकती है, स्टूडेंट्स उसका फीडबैक लिया जा सकता है, उसकी पीयर असेसमेंट की जाती है, उसकी सेल्फ असेसमेंट की जाती है। अब ये जो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट है इसको हम AFL के लिए करते हैं ज़्यादातर। असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए हम जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट को ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इनफॉर्मल सेटिंग में उसके अंदर हम स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, पीयर असेसमेंट करवा सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट करवा सकते हैं उसकी।
फिर उसका एनालिसिस हो सकता है, टेस्ट लिए जा सकते हैं, एग्ज़ाम लिए जा सकते हैं, बच्चे को कोई क्रिएटिव ऐसे लिखने के लिए दिया जा सकता है, और कुछ टारगेट सेट किए जा सकते हैं कि विद इन अ 1 मंथ हमने स्टूडेंट में कौन सी चेंजेस लेके आनी है, और हमने उसे कहाँ तक पढ़ाना है, और वो कितना सीख जाएगा, उसके एटीट्यूड में क्या तब्दीली आएगी, उसका कैसा बिहेवियर होगा। देन समेटिव असेसमेंट में किस तरह से इनफॉर्मल सिस्टम में, यानी कि हमारी जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है उसके अंदर किस तरह से चीज़ें चलती हैं। एसेस इन अनकंट्रोल्ड कंडीशंस, पोर्टफोलियोज, बच्चे जितना मर्जी पोर्टफोलियो बना सकते हैं, उनका कोर्स वर्क कंप्लीट होना चाहिए। टीचर का क्या फीडबैक है स्टूडेंट की तरफ से, स्टूडेंट टीचर की असेसमेंट किस तरह की करता है। फिर फॉर्मल सेटिंग में हम समेटिव असेसमेंट के जो टूल्स बना सकते हैं उसमें हम डिफरेंट टेस्ट ले सकते हैं, बच्चों के एग्ज़ाम ले सकते हैं, एसेस सेट कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ द वर्ड जो मैंने पूरा आपको पीछे आपके साथ डिस्कस किया AOF और AFL के बारे में, उसमें यहाँ पे एक सिंपल जो है वो कोटेशन है कि इनमें एक्चुअली डिफरेंसेस क्या हैं और वो डिफरेंसेस किस तरह से देखे जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर हम ओवरऑल इनको देखें तो जो हमारी असेसमेंट फॉर लर्निंग है उसमें हमारे टीचर मेड टेस्ट आ जाते हैं। जितने भी टीचर मेड टेस्ट जो टीचर क्लास में बच्चों के लिए यूज़ करता है, और जो टीचर्स की ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि ऑन बिहाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशंस टीचर्स जो हैं वो अपने प्रोसीजर्स को आगे लेके चलते हैं, अपने टीचिंग मेथड्स को देखते हैं, अपना कंटेंट डिसाइड करते हैं, किस किस्म की वर्डिंग यूज़ करेंगे, वोकेबलरी क्या होगी, ये सब चीज़ें टीचर जो है वो अपने प्रोसीजर को, अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एज यू नो दैट ऑल स्टूडेंट्स ट्राई टू गेट बेटर मार्क्स इन द एग्जाम, in the same way teachers always try to give some better and equipped lectures in the classes. टीचर्स की कोशिश होती है कि उनको टॉप प्रायोरिटी पे जो चीज़ें हैं, जो अप टू डेटेड मटेरियल है वो स्टूडेंट के साथ डिस्कस करें, जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं वो कहीं और से उसे मिल चुकी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिली तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टूडेंट तक पहुँचाई जा सके। वाइल जब हम जो हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करते हैं तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग में जो हमारे पास टूल्स होते हैं उसके अंदर हम रेटिंग स्केल यूज़ कर सकते हैं, लेबॉर्ट्री वर्क ले सकते हैं, ओरल रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं, स्टूडेंट की ड्राइंग्स के बिहाफ पे उनके प्रोसीजर चेक कर सकते हैं, और इसमें भी टीचर में टेस्ट जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं उनको देखा जा सकता है, और उसके साथ हम इसमें स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। Next, there are relative merits and demerits in assessment for learning and assessment of learning. This is actually for making your whole जितनी भी अभी तक हमने अपनी प्रेजेंटेशन ली है उस सबको फोकस करके जो उसके मेन पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे ला के मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। जैसे कि पहले भी मैं आपके साथ डिस्कस करती आ रही हूँ कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है ये हमारी असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है, जो हमारी असेसमेंट फॉर लर्निंग है, इट ऑन डिपेंड्स ऑन फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसके अंदर हमारा फोकस होता है प्रोसेस के ऊपर, और इसके अंदर हम स्टूडेंट की लर्निंग को जो है वो उसको मॉनिटर करते हैं, उसका फीडबैक लेते हैं, उसे फिर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, और उसे दोबारा से टीच करते हैं, उसको दोबारा से इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी लर्निंग के हमें बेटर रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएं। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है इसका बेसिक जो जो हमारा एडवांटेज होता है वो इसका एडवांटेज ही ये होता है कि इससे हमें स्टूडेंट का फीडबैक जो है वो बेहतर हो, और फीडबैक टू स्टूडेंट्स और उसमें रीइंफोर्स किया जा सके उसकी सक्सेसफुल लर्निंग की तरफ। इसके जितने भी एरर्स हैं उन सब एरर्स को ख़त्म किया जाए और उन एरर्स को ख़त्म करके उसका करेक्टिव एटीट्यूड जो है वो बनाया जाए। और देन आती है हमारे पास समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट आती है असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंडर। इसमें हम समेटिव असेसमेंट करते हैं जिसका फोकस होता है स्टूडेंट की आउटकम के ऊपर, स्टूडेंट की टोटल बिहेवियरल आउटकम, उसका टोटल एंड पे क्या सीन है, उसकी पर्सनैलिटी कितनी डिवेल्प हुई है, उसका एटीट्यूड क्या डिवेल्प हुआ है, उसका एप्टीट्यूड कैसा डिवेल्प हुआ है, सेल्फ इस्टीम कितनी है उसके अंदर, उसका सेल्फ जो इनकरेजमेंट है वो कितनी है। देन प्रोवाइड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स विद इंफॉर्मेशन अबाउट द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, और इसके अंदर हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट को जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसमें उसने कौन सी चीज़ किस हद तक जो है वो गेन कर लिया है। समेटिव इवैल्यूएशन कैन प्रोवाइड evidence that the program is satisfactory and should be continued for next year students, or that student learning attitudes are so negative that a new program is needed.
किसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करना है या उसको ख़त्म करना है, इट डिपेंड्स ऑन समेटिव असेसमेंट। उसके बाद इसमें जो हमारी असेसमेंट फॉर लर्निंग है, इसमें हम हेल्प्स टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, स्टूडेंट को पॉलिश करते हैं, उनके जो टारगेट्स होते हैं उन टारगेट्स तक वो पहुँचे या नहीं, इस चीज़ को डिटर्मिन किया जाता है, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जाती है। अगर वो अपने टारगेट्स तक नहीं पहुँचता तो फिर उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए उसे बकअप किया जाता है। और जो हमारी असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है, इसमें द गोल इज़ टू इवैल्यूएट स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन यूनिट बाय कंपेयरिंग इट अगेंस्ट सम सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड, सम ऑफ बेंचमार्क्स। बेंचमार्क्स आर दो स्टैंडर्ड्स जो कि हम इन बच्चों के आने से पहले जो बैचेस गुजर जाते हैं, जो चीज़ें जो स्टैंडर्ड्स वो सेट करके जाते हैं, उनको हम बेंचमार्क्स का नाम देते हैं। सो यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो बेंचमार्क्स या जो स्टैंडर्ड्स इन बच्चों के लिए सेट कर दिए गए हैं, क्या वो बेंचमार्क्स और स्टैंडर्ड्स बच्चे उनको फुलफिल करते हैं। एज इन और कैंपसेस हमारे बच्चे 50% मार्क्स लें तो वो पास कंसीडर होते हैं। तो अगर हमारा जो स्टैंडर्ड या बेंचमार्क 50% मार्क्स एक बच्चा नहीं ले रहा, तो इट मीन्स कि उसकी असेसमेंट जो है वो उसकी असेसमेंट जो है वो गलत है और उसको दोबारा उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। नाउ दिस द फिफ्थ पॉइंट के इसमें हम ये देखते हैं कि जो हेल्प फैकल्टीज रिकॉग्नाइज वेयर स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग एंड एड्रेस प्रॉब्लम इमीडिएटली। और इसमें हम ये देखते हैं कि जो बच्चा जो है वो जिन चीज़ों को एड्रेस कर रहा है, जो इन चीज़ों को देख रहा है, जिन चीज़ों के साथ उसे प्रॉब्लम हो रही है, हम उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। हमारी जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है उसके अंदर हम इन चीज़ों को डायग्नोज करते हैं। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक बच्चे को परसिस्टेंटली कौन सी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं दैट आर लेफ्ट अनरिजॉल्व बाय द स्टैंडर्ड करेक्टिव। जो भी हमारा स्टैंडर्ड करेक्ट स्टैंडर्ड है उस तक पहुंचने के लिए अगर उसको फॉर्मेटिव वैल्यूएशन नहीं पहुंचा रही, तो भी हम यहाँ पे असेस करने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट continues to fail in reading mathematics or in reading something or in mathematics subject or in other subject despite the use of alternative method instruction, यहाँ हम देन अ मोर डिटेल डायग्नोसिस इंडिकेटेड, और हम उसे ज़्यादा इंडिकेटेड तरीके से चीज़ों को डायग्नोज करते हैं। और समटाइम्स इसके अंदर हम बच्चे को कोई मेडिकल साइकोलॉजिकल इस तरह के इश्यूज़ के बिहाफ पे भी चीज़ों के अंदर लेके चलते हैं। लो स्टेक्स, लो और नो पॉइंट वैल्यू। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इसमें हमारा इतना जो है वो जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश की जाती है, स्टूडेंट को मोटिवेट करने की कोशिश की जाती है, और जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। नाउ इन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेस वेदर द रिजल्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग इवैल्यूएटेड मेट द स्टेटेड ऑफ गोल्स। ऑब्वियसली हमने एक बच्चों के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाए हुए होते हैं, और हमारा पूरा पर्पज़ ये होता है कि हमने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं हम अपनी लर्निंग प्रोसीजर या जो बच्चों को हम मेथड ऑफ टीचिंग अडॉप्ट किया हुआ है उसके ज़रिए हम बच्चे को वहाँ तक लेके जा सकें, और वो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स का जो हमारे पास आउटकम्स बनती हैं वो हम आउटकम्स पूरे तरीके से बच्चे से जो है वो इवैल्यूएट करा सकें। तो टीचर अपनी बेस्ट कोशिश करता है कि वो जो भी चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम, ये यहाँ पे ये फिफ्थ पॉइंट में यहाँ पे इवैल्यूएट करता है, असेसमेंट करता है कि जो भी डायग्नोज किए चीज़ें, स्टूडेंट की वीकनेस, उसकी डेफिशिएंसीज, उनकी बेसिस पे उनको रेमेडियल डिसीजंस जो हैं वो दे सके। और इसमें डिफरेंट तरह की चीज़ों को वो लेके जाता है, उन पर्पसेस को अचीव करने के लिए वो डिफरेंट तरह की चीज़ें स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करता है। और जब वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग की तरफ जाता है तो ऑब्वियसली टीचर की कोशिश होती है कि जितनी चीज़ें वो स्टूडेंट को पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है, वो बेहतर तरीके से उन चीज़ों को समझ सके और सीख सके। और इसके अंदर हाई स्टेक्स और हाई पॉइंट वैल्यूज़, इसका जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा हायर होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास लेट्स से कि हम जैसे समटाइम्स बोर्ड के पेपर देते हैं, कम्प्रीहेंसिव देते हैं, फाइनल एग्ज़ाम देते हैं, एक्सटर्नल पेपर देते हैं, तो इस वजह से इसको हाई पॉइंट ऑफ वैल्यू पे रखा जाता है। These are the basically references for this topic, और इन references के बिहाफ पे आपको जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो आप वो इन लिंक से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी किस्म के मज़ीद क्वेश्चंस जो पूछना हो वो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मुझे आपकी तरफ से फीडबैक जो है वो मिलेगा। आपके क्वेश्चंस जो भी आप मुझसे पूछना चाहेंगे उन सब के आंसर्स करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।